Good morning, all of you, my dear students. Once again, I welcome you, all of you, in my science class. So, today we are going to do some numericals related to our Newton's equations of motion. Within our previous class, we have studied the Newton's equation of motion by graphical method and by mathematical method. Okay. So, the graphical method is very important as point of view of your exam. So students, whatever be the numericals we have to do, you all have to take your NCRT book. First we have to do the numericals of NCRT. So those numericals based on the core concept. So within our NCRT, we are going to do the examples which is on page number 108 109. So students, example 8.5, 8.6 and 8.7 you all have to do at home. Examples are there, so solve examples. Okay, solution is already given there. Now we have to do the unsolved questions. So unsolved question at 109 page. A bus starting from rest move with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. Okay, so there is one question which is on page number 109, and this is unsolved question or in text, that is NCRT page number 109. Question number 1. NCERT page number 109, question number 1. So, a bus starting from rest. So, a bus starting from rest. So, first you all have to read the question carefully and then you have to write the given part. What is given in the question? So, this is given part. Given initial velocity u. U means the bus starting from rest. If any object start from rest, it means its initial velocity is 0 meter per second. Its initial velocity is 0 meter per second. And with a uniform acceleration of, so उसने स्टार्ट किया मूव करना एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So acceleration is 0.1 meter per second square. Okay, for 2 minutes. So this is the time t. He takes 2 minutes. 2 minutes. So every time you have to convert this time into seconds. So 2 into 60 is equal to 120 seconds. So here the time is 2 minutes. That is 120 second. Find the speed acquired. After 2 minutes, what is its final velocity, final speed? So V you have to find, and you also have to find the distance traveled. So distance means S. S you have to find. So distance traveled means S. So what? U, A and T are given. So V के लिए from first equation of motion. From first equation of motion, what is first equation? V is equal to u plus at. This you have to use here. From first equation of motion, V you have to calculate. U is 0 plus A. A is 0.1. Okay, meter per second square, and into what is T? T is 2 second. Okay, so from 1 second to 1 second here cancel out. This is 0.1. So 2 second meaning ये बेटा 120 second है. 120 second. So that I write here clearly. 0.1 meter per second square.
that is 120 seconds. So 1 second to 1 second cancel. So this is 0.1 into 120, that is 12 and meter per second. So this is your final answer. Velocity, how much is the velocity that bus acquires after 120 seconds? That is 12 meter per second. नाउ आफ्टर दैट आपके पास v भी है, आपके पास u है, सारा कुछ है. नाउ यू हैव टू फाइंड s. तो s के लिए आपको क्या फॉर्मूला यहाँ यूज करोगे? सो फॉर फाइंडिंग s यू हैव टू इक्वेशंस. Second equation of motion and third equation of motion. Second equation of motion is s is equal to ut plus half at square, and third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. Okay, so v square minus u square is equal to 2as. तो कोई भी आप इक्वेशन यहाँ यूज कर सकते हो. v s is equal to ut plus half at स्क्वायर. ये काफी आपको यहाँ पे डिफिकल्ट इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी. सो यू आर यूजिंग हियर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आप यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as and you have to find here s. तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. Now putting this formula here, s is equal to v square की वैल्यू कितनी बेटा? 12 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2a. 2 into a is here 0.1. 0.1. So 12 into 12 होता है बेटा 144 अपॉन 2 into 0.1. तो ये आपका हो जाएगा बेटा 0.1 को अगर आप यहाँ से ही कर दें तो ये हो जाएगा आपका 0.8 ऊपर बढ़ जाएगा. तो यू आर गेटिंग 10 आप ऊपर बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 2 720 मीटर. ओके, 2 7 या 42, तो 720 मीटर. So how much the distance traveled? That is 720 meter. 720 meter. Is it clear to all of you? Is it there have any doubt, students, within this numerical? So you all have to know that you have to use these equations आपको यूज करनी है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो इन दिस वे, जैसे यहाँ पे आपका v और s पूछा गया, इन दिस वे कुछ भी अब आपको इक्वेशन में पूछा जा सकता है. दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल मोशन. वी हैव टू टाइप ऑफ मोशन. एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, ऐसे दूसरा वर्टिकल मोशन. अगर मोशन वर्टिकल आएगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर. वो हम अभी यूज करेंगे आगे. नाउ स्टूडेंट्स, now you just come on NCERT page number 110, and on page number 110 question number 2, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. मीन्स अब यहाँ पे रिटार्डेशन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ट्रेन है ऑलरेडी मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर. सो पहले आप 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा बाय मल्टीप्लाइंग बाय 5/18. सो यू आर गेटिंग द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड. फाइनली ट्रेन रुक रही है, रेस्ट आ रही है. सो द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन a आपका गिवन है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
सो आपका इसमें बेटा v भी गिवन है, u भी गिवन है, a भी गिवन है. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड हेयर द हाउ फार द ट्रेन विल गो, मीन्स वो रुकने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ब्रेक लगते लगते. सो यू हैव टू फाइंड एस ओनली. सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. लिख लीजिए ऑन पेज नंबर 110 यू हैव टू यूज न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड यू हैव टू कैलकुलेट. मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना होगा. ओके, सो आई थिंक यू ऑल नो द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन along with points के साथ में आप जानते हो. नाउ यू आर इन सीनियर क्लास, 9th क्लास. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू डू इन होमवर्क. और मैं आपको होमवर्क में बता रहा हूँ. इन होमवर्क क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले ऑन पेज नंबर 1010, ऑन पेज नंबर 1010 क्वेश्चन नंबर 2. इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होमवर्क में दिए हैं 8.5, 8.6 एंड 8.7. तो एग्जाम्पल्स 8.5, 8.6 एंड 8.7. तो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. ए ट्रॉली while going down on inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Okay, a trolley while going down on inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second. What will be its velocity 3 seconds after the start? Okay, so initially the trolley is at rest. So u is equal to 0 and its acceleration is 2 centimeter per second square. So बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा. 2 मीटर इज इक्वल टू 0.02 meter. So here acceleration is 0.02 meter per second square. And the time is given here 3 seconds. So what will be its velocity after 3? Means you have to find its final velocity after 3 seconds. So initial velocity 0 हो गया, acceleration 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एंड फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है इन टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. सो टाइम हो गया 3 सेकेंड. आपको न्यूटन्स की इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगानी है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड यू आर डायरेक्टली फाइंड इट्स आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो इन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3. Now you come on question number 4. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. So acceleration A is given there 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? यानी after start 10 second. So start किया होगा 0 से. So initial velocity u is equal to 0. टाइम दे रखा है आफ्टर 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यू हैव टू डायरेक्टली पुट ओवर हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड यू आर डायरेक्टली फाइंड द डिस्टेंस. आपको डायरेक्टली मिलेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी सिंपल. So you have to do 3 examples and 3 in text questions. Okay, in your homework. मैंने अभी आपको बताया first you all have to write the given part. Given part में देखना है कि आपको क्या find करना है. Then after that you have to solve it by putting the values in formula. Okay, मैंने formula भी आपको explain किया है. I am just explaining all the question. Now we are going to do question number 5. This is question related to vertical motion. अब vertical motion के regarding मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि how we solve the questions related to vertical motion. This is one of the question we have do
related to horizontal motion. In this, the object is moving in horizontal path. Now, the question we are doing in this, the body is moving its vertical path. ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आपकी बॉडी मूव करेगी. So in that condition, what you have to take? Okay. So let's start. तो पेज नंबर 110 पे क्वेश्चन नंबर 5 है. पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 5. All students have to do all questions in your fair copy. तो फटाफट आज और कल 2 दिन में ये चैप्टर वाइंड अप कर देंगे. Now after this we have to start our chapter 1. So 2 chapters are coming in your exam. साथ ही साथ करते जाइएगा रिवीजन पूरी. इतना खास अब 2-3 दिन का 4 दिन का रिवीजन मिलेगा बस. Now students, question number 5. A stone is thrown in a vertical upward direction with a velocity of 5 meters per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meters per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much will it take to reach there? Okay. देखिए बेटा, अभी आपने किया था हॉरिजॉन्टल मोशन पे क्वेश्चन. अब यहाँ बात आती है वर्टिकल. वर्टिकल मोशन का मतलब देखिए कैसे है. सपोज हियर इज ग्राउंड, हियर इज ग्राउंड एंड यू आर थ्रोइंग ए बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन. आपने बॉल को यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया. सो व्हाट यू हैव सीन, आप क्या देखते हो. इनिशियली आपने बॉल को फुल स्पीड से फेंका था, लेकिन बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती है तो फाइनल एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है. सो इन दिस वे व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप. अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम डाउन टू अप, डाउन टू अप. फिर यहाँ बात करेंगे अप टू डाउन. सो डाउन टू अप अगर हम जा रहे हैं, सो इन दिस व्हाट वी हैव सीन, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो इसमें रिटार्डेशन हो रहा है. रिटार्डेशन का मतलब जब बॉडी ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन हम कहेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं है. क्वेश्चन में ये कई बार लिखा हो सकता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इतना चलेगा. 9.8 को आप राउंड फिगर में 10 लिख सकते हो. ठीक है. सो रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए ऊपर. इनिशियल वेलोसिटी v हमारी यहाँ कुछ ना कुछ होगी. जैसे मैंने बॉल को 30 मीटर पर सेकंड फेंका या 40 मीटर पर सेकंड फेंका, लेकिन बॉल फाइनल पॉइंट पे जाके रुक जाएगी. तो हियर द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. यहाँ इनिशियल वेलोसिटी हमारी कुछ ना कुछ होगी. नीचे से जब फेंकेंगे फाइनल वेलोसिटी 100% जीरो ही होगी इन ऑल केसेस. ऊपर जाके बॉल रुक गई और ये जीरो. तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इसकी हाइट होगी, दैट हाइट वी हैव टेकन एज s. वो हम क्या ले लेंगे, s डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो सो दैट इज टाइम t. टाइम तो हम बताएंगे कि मैं बॉल यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में इतने टाइम में रुकी, या फिर हमें टाइम पूछा भी जाएगा कि कितने टाइम में. सो इन दिस जब नीचे से ऊपर जाएगी तो हम कहेंगे ये नेगेटिव. सपोज अब देखिए सेकंड पॉइंट, इफ द बॉल इज कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर बॉल आपकी टॉप से बॉटम की तरफ आ रही है, सो हियर द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. भाई बॉल यहाँ जाके रुक चुकी थी, अभी ऊपर से नीचे आ रही है. नाउ the velocity is continuously increasing. so here final velocity आपको नहीं पता कितनी होगी, तो वो तो फाइनल होगी जितनी होगी. अब इसमें जो a है, velocity is continuously increasing, so this is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और राउंड फिगर में कई बार बुक्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी गिवन होता है.
ओके, टाइम इसमें जो भी लगेगा, एक बार ध्यान रखिएगा, जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। तो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने में फिक्स लगेगा, सेम लगेगा। ओके, so this is the concept about vertical motion। इसमें एक्सेलरेशन फिक्स होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अपवर्ड जो पॉइंट होगा इस पे वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ओके, अगर यहाँ से आपने इनिशियल नीचे से फेंका है तो कुछ u आपका होगा, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी होगी, जब ऊपर से नीचे बॉल आई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ मिलेगी। ओके, so this is the basic concept, this is down to up and this is up to down, up to down। So this much you all have understand what I have explained you students। Tell me clearly, after that we are going to do example 5। Respond me fast। यहां तक बेटा सभी को समझ आया? Now you just see question number 5। Now we are going to start question number 5। This I am going to rub recording हो रही है बेटा, I am also upload it on YouTube। So from there you just understand। Now a stone is thrown in a vertical upward direction with velocity। स्टोन को कहाँ फेंका गया बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप फटाफट लगाइएगा, अपवर्ड डायरेक्शन है तो गिवन इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ गिवन है विद वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकंड, जब नीचे से ऊपर पहुंच जा रहे तो एक्सेलरेशन 10 दे रखा है, आप लिख लोगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था माइनस क्यों होगा। नाउ आफ्टर दैट देखिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव उसमें दिया हुआ है, तो अपवर्ड उसका नेगेटिव आपने ले लिया -10। What will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? इसने बॉल ने यहाँ तक पहुंचने में सबसे पहले तो कितना टाइम लिया और कितना उसने हाइट कवर की, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया फ्रॉम डाउन टू अप। इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है 5 मीटर पर सेकंड और अपवर्ड इसका एक्सेलरेशन गिवन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड उन्होंने दिया है सो पॉजिटिव लिखा हुआ है, डाउनवर्ड पॉजिटिव 10 सो अपवर्ड -10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। so how much time will they take और how much displacement टाइम? अब देखिए, यू हैव टू फाइंड फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो सकता है बेटा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो यहां से s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू a की वैल्यू है -10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -25 अपॉन यहाँ हो जाएगा -20 माइनस टू माइनस कैंसिल और 5 अपॉन 4 सो s इज इक्वल टू 1.25 मीटर। कितना होगा? 1.25 मीटर। And how much is the time taken? So you just think कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में?
सो u आपको गिवन है, b आपको गिवन है, a गिवन है. ओके, तो यू जस्ट सी, सिंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, v माइनस यू अपॉन a. सो t इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है -10. तो दिस इज -5 अपॉन -10. माइनस टू माइनस कैंसिल, 1/2, तो 0.5 सेकेंड. So time you are taken here 0.5 second and s is 1.25 meter. So in this question you have to solve for s and t in this way. ठीक है, ये वाला कहाँ से लिया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपने एक्सीलरेशन से भी ले सकते हो. आप डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हो. That formula we already used while doing derivation. जब हमने डेरिवेशन किया था तो उस टाइम हमने इसको यूज किया. ओके, नाउ स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड से और ये सारा कुछ, नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस. इतना आप लोगों को आज होमवर्क में कर लेना है. Now after that 10 minutes are there, we are going to do the last topic, that is uniform circular motion. Okay, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आज करके इसको वाइंड अप करते हैं, एंड करते हैं. और कल हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू डू, आपको सभी को जितने भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 10, 7 क्वेश्चंस आर देयर एनसीईआरटी. यू ऑल हैव टू डू, जितना आता है उतना कर लेना. आफ्टर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू एक्सरसाइज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट क्लास. कल की जो क्लास होगी उसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे. नाउ आफ्टर दैट हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम यहाँ देखते हैं फटाफट. बिल्कुल लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसका कॉन्सेप्ट विद इन 10 मिनट्स हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. इसमें दो तरीके के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. कैसे सॉल्व किए हैं, रिपीट कर करके वीडियो देख लेना है. इससे पहला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें डेरिवेशन करवाया था, वो भी रिपीट कर करके देख लेना.